Hello students, so we are here with the solutions of JEE Main Test 67 uploaded on NTA Abhyas app today. So this is again a moderate level paper, right? Similar to the last 4-5 papers that have been uploaded on NTA Abhyas. It's a moderate level paper. Three questions overall I found are good questions, relatively good questions. Question number 5, 14 and 21 जो हम लोग अभी discussion में देखेंगे. But a score, let's say 60 plus, will be considered as a good score in this paper. So moving to the discussion. Right, the first question, atomic structure. The hydrogen atom initially in ground level absorbs a photon which excites it to n equals to 4 level, and we need to determine the wavelength of this photon, right? So since we are given hydrogen atom, तो अगर मैं energy difference find out करूं, let's say this delta E for moving from 1 to 4, so that will be E4 minus E1, so this is minus 0.85 and minus of minus 13.6 electron volt में of course. तो ये जो difference आएगा, this difference comes out as 12.75 electron volt, right? Now this energy, this 12.75, when equated to Hc by lambda, this Hc is 1240. This is 1240 electron volt nanometer, and that upon this 12.75, ये कुछ 9 का factor यहाँ पे आना चाहिए. So that comes out as 9.8 into 10 to the power minus 8. तो सिंपल क्वेश्चन था कि अपन ने जस्ट 1 to 4 का एनर्जी निकाला और उसको Hc by lambda से इक्वेट किया. Right then, after a perfectly inelastic collision between two particles moving with the same speed in different directions, the speed of the particles become half. Now, since it is a perfectly inelastic collision, तो objects last में stick कर जाएंगे. The angle between velocity of the particles before the collision, right? So if we apply momentum conservation here for this completely inelastic collision, momentum conservation, so identical particles, it is m into v1 vector plus same mass m into v2 vector, and that is equals to combine किया तो it is 2m into v vector. तो यहाँ से we have this v vector equals v1 vector plus v2 vector upon 2. Right, if we let's say talk about the magnitude, तो v vector का magnitude जो होगा that will be v1 vector plus v2 vector का magnitude upon 2. Now the question says speed of the particles becomes half the initial speed. तो अगर initial speed मैं u मान लेता हूं तो final speed का magnitude तो हो जाएगा u by 2. Now this is resultant of v1 and v2 vectors, right? Resultant of v1 and v2 vectors, v1 और v2 दोनों का initial speed same था, u था. तो इसके resultant को अपन लिख सकते हैं by this a square plus b square plus 2ab cos theta under root and that upon 2. ठीक है, इसको फर्दर अपन सॉल्व करें तो यहां से आपका ओवरऑल वैल्यू जो बनेगा, दिस इज cos थीटा, इट इज कमिंग आउट एज माइनस हाफ, सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया और उसके हिसाब से रिजल्ट आपका 120 आ रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं. Right, next question, it says a light rod of length L is hanging from the vertical wall of a vehicle moving with acceleration root 3g along the horizontal. Right, तो अगर ये vehicle कंसिडर करें और ये व्हीकल जो है ये रूट 3g एक्सेलरेशन से, राइट, रूट 3g एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड जा रहा है और इसमें जो रॉड हमने हैंग किया होगा ऑफ कोर्स वो कुछ एंगल से इंक्लाइन हो जाएगा. अब ऐसे केस में वी नो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g इफेक्टिव व्हिच इज गिवन बाय g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर अंडर रूट. a नॉट इज द एक्सेलरेशन विथ व्हिच द व्हीकल इज मूविंग, तो वो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस g इफेक्टिव इट कम्स आउट एज 2g. Now, when g effective is 2g, अब उसके बाद we will consider it as a routine case, है ना, horizontal acceleration को incorporate कर लिया, तो now we will just apply mechanical energy conservation. यहाँ पे ये object लगा हुआ है और light rod है. Since it is a light rod, तो rod के energy changes को consider नहीं करना है, केवल जो object है, a small mass जो उस पे attach किया है, केवल उसके energy changes consider होंगे. तो अगर वो लेट्स से कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, दिस इट सेज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द मास एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल. तो कंप्लीट्स द सर्कल में अगर मान लो यहां से घूम के हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन अपन मान लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड विल बी 0. इसका मतलब जितना भी काइनेटिक एनर्जी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दिया था हाफ mv स्क्वायर, that is converted to potential energy as mg effective into h. ठीक है, तो इसमें जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है बॉल के लिए बिकॉज रॉड जो है वो लाइट है
और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जस्ट जीरो हो जानी चाहिए अंडर लिमिटिंग कंडीशन, तो इसमें ये m कैंसिल हो गया एंड वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, g इफेक्टिव का वैल्यू इज 2g और हाइट जो चलना पड़ेगा दैट इज 2l। तो यहां से v की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 8gl अंडर रूट, दैट इज द मिनिमम स्पीड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहां पे देना होगा। तो इट्स जस्ट दैट कि अपन ने जी इफेक्टिव निकाला और नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन आपने लगाया और उसमें जी की जगह mgh में जी की जगह जी इफेक्टिव यूज किया है, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एन AC EMF हमें गिवन है इज अप्लाइड टू LR सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस हमें गिवन है और एम्पलीट्यूड पूछा है, तो अब Z निकालना होगा, इंपेडेंस, इंपेडेंस के लिए वी नीड XL। तो XL जो है दैट इज ओमेगा L, ओमेगा वी आर गिवन यहाँ पे इट इज 1000, तो ओमेगा इज 1000 एंड L इज 3 मिली हेनरी। तो उसके हिसाब से आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 3 ओम आ गया। अब अकॉर्डिंगली अपन Z निकालें एज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट, तो दैट अकॉर्डिंगली इट इज 5 ओम एंड देन वी कैन राइट दैट IM जो है दैट इज VM बाय Z। तो VM का वैल्यू वी आर गिवन इन दिस इक्वेशन एज 4 और Z का वैल्यू वी हैव 5, सो दिस कम्स आउट एज 0.8 एम्पियर। तो ये आपका IM का वैल्यू 0.8 एम्पियर आ रहा है। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, right? Then this is a very good question given here. Four identical capacitors are connected with a battery of voltage V and two switches are given. Initially K1 close था, बाद में K2 close किया और heat loss निकाला है। Alright, जब initially K1 close था और K2 open था, तो आप ऑब्जर्व करें जब K2 open है तो this capacitor it is meaningless, इसका कोई रोल नहीं है। और ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे बिकॉज ये एक नॉर्मल वायर इनके अक्रॉस कनेक्टेड है। सो द ओनली एक्टिव कैपेसिटर इज दिस वन। तो व्हेन K1 is closed, we are considering the situation when K1 is closed, तो ऐसे केस में ये जो कैपेसिटर ये बेकार हो गया, बाकी ये दो शॉर्ट सर्किट हो गया और एक ही कैपेसिटर एक्टिव रहेगा। तो ऐसे केस में जो एनर्जी स्टोर होगी इनिशियली, जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज जस्ट हाफ CV स्क्वायर, पूरा का पूरा वोल्टेज एक ही कैपेसिटेंस को मिल रहा है और जो चार्ज वैल्यू आएगा एक ही कैपेसिटर है दैट विल बी गिवन बाय Q इक्वल्स टू CV, दैट इज इनिशियल स्टेटस। नाउ व्हेन K2 इज आल्सो क्लोज्ड, राइट, K2 को भी अगर क्लोज कर देते हैं तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए, अब इस सिचुएशन में सिनेरियो ऐसा होगा, you can observe that कि यहां अगर अपन नेमिंग करें एज पॉइंट A, तो इधर से सीधा वायर यहां कनेक्ट हो रहा है, दिस इज आल्सो द सेम पोटेंशियल A। यहां पे इफ वी मार्क इट एज B एंड इस जगह पे इफ वी मार्क इट एज लेट्स से C, तो यहां पे भी C आ जाएगा। तो अब इफ वी रीड्रॉ दिस नेटवर्क एज A B हियर, सॉरी C हियर, बिकॉज A और C के अक्रॉस बैटरी है एंड B यहां पे, तो वी कैन सी A और B के बीच में कैपेसिटर है, तो हमने A और B के बीच में ये कैपेसिटर लगा दिया। फर्दर ये B और A के बीच, यहां B और A के बीच एक और कैपेसिटर है, तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो ये इसका एक और कैपेसिटर पैरेलल में लगाया। देन फर्दर वी कैन सी यहां नीचे B और C के बीच में कैपेसिटर है, तो ये B और C के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन सी A और C के बीच में कैपेसिटर है, तो यहां A और C के बीच कैपेसिटर बनाया। एंड देन वी हैव अ बैटरी बिटवीन A एंड C, दिस इज द नेटवर्क। अब सारे कैपेसिटेंसेस C हैं, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी 2C। ये 2C इसके साथ सीरीज में है और फर्दर ये इसके साथ पैरेलल में होंगे, तो आपका जो C इक्विवेलेंट आएगा, 2C एंड C सीरीज में है तो इट विल बी 2C/3 और फिर C के साथ पैरेलल में किया तो दिस कम्स आउट एज 5C/3, C इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, C इक्विवेलेंट आएगा तो फाइनल चार्ज बैटरी के अक्रॉस कितना आ गया, दैट इज Q इक्वल टू CV, तो 5CV/3 इज द फाइनल चार्ज। फाइनल एनर्जी कैपेसिटर के पास कितना स्टोर्ड है, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C इज 5C/3 इंटू V स्क्वायर, सो दैट कम्स आउट एज 5CV स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली इफ वी सी दैट हाउ मच एडिशनल चार्ज हैज पास थ्रू द बैटरी, ये K2 को क्लोज करने के बाद एडिशनल चार्ज बैटरी में से कितना पास हुआ, दैट इज QF माइनस QI। तो QF माइनस QI के हिसाब से वी कैन सी दैट द एडिशनल चार्ज इज 2CV/3। नाउ वी कैन सी द वर्क डन बाय द बैटरी, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इट इज पार्शियली इनटू द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर रिमेनिंग एज हीट। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, Q टाइम्स V,
जितना चार्ज बैटरी के अक्रॉस पास हुआ है 2 CV/3 मल्टीप्लाइड बाय जो बैटरी का वोल्टेज है, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी. देन द चेंज इन एनर्जी, अपन ने यूएफ और यूआई निकाल रखा है. द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज 5 CV² by 6 माइनस इनिशियल वॉज CV² by 2, तो दिस इज डेल्टा यू प्लस दिस हीट लॉस. Now when this is evaluated, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो आपका हीट इवेल्युएशन जो आएगा दैट इज CV²/3. तो दैट इज गिवन इन दिस थर्ड ऑप्शन. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जहां पे आपने इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज निकाला और फिर ये एनर्जी रिलेटेड इक्वेशन अप्लाई की दैट द वर्क डन बाय द बैटरी, इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, द एनर्जी स्टोर्ड द कैपेसिटर एंड द हीट लॉस. राइट, सो गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. The following figure gives the movement of an object. We need to find right. It's a speed time graph. पहला ऑप्शन डिस्टेंस के बारे में है. We know that speed time graph से हम डिस्टेंस निकालते हैं थ्रू एरिया. तो हम यहां पे जस्ट ये एरिया कैलकुलेशन करेंगे कि इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लें. Then after that we can calculate this area. Then accordingly अपन this complete area can be calculated, this one. ठीक है. Then after that we can calculate the area of this trapezium. After that we can calculate the area of the square and this triangle. वो सारे एरियाज आप कैलकुलेट करें बिकॉज दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दैट एरिया अंडर दैट ग्राफ, राइट. तो वो एरियाज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट कैलकुलेशन विल लीड यू टू 975 मीटर्स. इसमें वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच टाइम, तो जस्ट एरिया कैलकुलेशन करना है और वो सारा एरिया कैलकुलेट होके 975 आ रहा है. सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. Right, if the escape speed of a projectile on Earth's surface is v escape given, and a body is projected out with thrice this speed, then we need to find the speed far away from the Earth. Right, so straight away mechanical energy conservation का question है that the loss in kinetic energy will be the gain in potential energy. तो loss in kinetic energy अपन लिखें as half m u² minus v². u is the initial speed जिससे उसको प्रोजेक्ट किया है and v is the final speed जिससे वो फार अवे पहुंचेगा. और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अपन देखें तो when it is far away from earth, जब एस्केप कर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी becomes 0 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इट वाज -gmm/r. तो वो जो -gmm/r था वही उसका गेन है बिकॉज इट हैज बिकम 0. इनिशियल -gmm/r था सरफेस पे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो दैट इज k लॉस इक्वल टू गेन. देन अकॉर्डिंगली इसमें u की जगह वी कैन राइट 3 टाइम्स v एस्केप. तो 3 टाइम्स v एस्केप का स्क्वायर हो रहा है तो 9ve² माइनस दिस v² फाइनल. और gmm/r को ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट एज हाफ m v एस्केप स्क्वायर. ये तो ऑफ कोर्स आपको ध्यान होगा. अब अकॉर्डिंगली आपका हाफ m कैंसिल हो गया एंड वी हैव 8ve² एज v². तो v की वैल्यू आपकी √8 टाइम्स v एस्केप आ रही है. Now √8 times v escape मतलब it will be less than 3 times the v escape value. तो 33 point something से कम आना चाहिए. तो उसके हिसाब से the suitable option will be D ऑप्शन आ रहा है. तो जस्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था, अपने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया इसमें. Right, then which of the following cylindrical rods will conduct maximum heat when their ends are maintained at the same temperature? Right, तो maximum heat कंडक्शन का फॉर्मूला आपका H equals to KA डेल्टा T by L है. ठीक है. इफ वी राइट दिस एरिया एज पाई आर स्क्वायर बिकॉज सिलिंड्रिकल है तो बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट्स हैं, दिस पाई, डेल्टा T, K एंड ऑल. तो वी कैन सी दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बाय L. तो हमें इसमें चारों ऑप्शंस में R स्क्वायर बाय L का रेशियो चेक करना पड़ेगा एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट दिस रेशियो विल बी मैक्सिमम. राइट, हमें मैक्सिमम पूछा है, द रेशियो विल बी मैक्सिमम फॉर ऑप्शन डी. तो जस्ट H प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बाय L हमें चारों डेटा के लिए चेक करना है. नेक्स्ट पे चलते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्किंग टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज द लीस्ट? नाउ कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इट इज 1 minus TC upon TH. राइट, तो हमें मिनिमम एफिशिएंसी निकालना है. तो मिनिमम एफिशिएंसी तब आएगा जब TC अपॉन TH का जो रेशियो हो वो मैक्सिमम हो. तो वी कैन सी दैट पहले वाले ऑप्शन में TC और TH का रेशियो इज 0.8. यहां पे TC बाय TH कर रहे हैं तो ये रेशियो 0.5 आ रहा है. इधर TC बाय TH इज 6/8. 6/8 इज 3/4, तो दिस इज 0.75.
एंड सिमिलरली डी में द रेशियो इज 4/6, 2/3 इज 0.67। तो आपका मैक्सिमम रेशियो जो टीसी बाय टीएच का है वो ऑप्शन ए में है, तो मिनिमम एफिशिएंसी ऑप्शन ए में ही मिलेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। A thin flexible wire of length L is connected to a battery to form a closed loop. The battery drives a current I in the wire. Right, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा और टेंशन निकालना है। तो रूटीन क्वेश्चन, अपन उस कंप्लीट वायर का एक पोर्शन अगर ऐसे कंसिडर करें, ये सॉल्व किया होगा आपका, और एक एलिमेंट कंसिडर करें, एक स्मॉल एलिमेंट अपन वायर का कंसिडर करें, जो लेट्स से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट एंगल इज डी थीटा। सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा, यहां से अपन ये लाइन ड्रॉ करें सिमेट्रिकली, तो ये जो एंगल अब बचेगा इट विल बी डी थीटा अपॉन 2। अब वी नो दैट ये जो सेगमेंट है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दिस सेगमेंट लेट्स से इट इज ऑफ लेंथ dl, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज BIL, तो इट इज BI इंटू DL। और जो नेबर्स हैं उसको वो टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे टेंजेंशियली, तो यहां से T टेंशन लग रहा है, इधर से ये T टेंशन लग रहा है, और अपन यहां टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो उसके हिसाब से जो एंगल मिलेगा, जो एंगल इस जगह पे हमें मिलेगा, दिस एंगल इट विल बी डी थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली अगर फोर्स बैलेंसिंग करें तो इस सेगमेंट के ऊपर बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज BIDL, और T के साइन कंपोनेंट्स नीचे की तरफ आएंगे दोनों तरफ के, तो इट विल बी 2T साइन डी थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब जो DL होगा, दैट स्मॉल एलिमेंट आर्क लेंथ विल बी RD थीटा, तो दिस इज RD थीटा एंड दिस इज 2T साइन D थीटा बाय 2। Now when theta is very small, sin theta को अपन theta लिख सकते हैं, तो this result it comes out as BIR and that will be equals to 2T upon 2। तो यहां से टेंशन का वैल्यू जो होगा दैट विल बी BIR। अच्छा, सिंस ये L लेंथ का वायर था तो वी कैन राइट 2 पाई R इक्वल्स टू L, तो यहां से R की वैल्यू आपकी L अपॉन 2 पाई आ रही है, तो इज BIL अपॉन 2 पाई। तो उसके हिसाब से अपन देखें तो दैट फॉर्मूला कम्स आउट एज दिस C पार्ट। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे पहले भी, तो टेंशन वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वजह से इतना कैलकुलेट हो रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड गिवन पैरेट स्पीड ये दे रखा है टुवर्ड्स साउथ। राइट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा दोनों के ऐड होने से आएगा दैट इज 15। जो रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस उन्हें कवर करना है मिलकर दैट इज 150। एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है दोनों का, तो दैट द टाइम टेकन इज दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दैट कम्स आउट एज 10 सेकंड्स। तो अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, तो आपका 10 सेकंड्स इसमें रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, a photon of energy 10.2 corresponds to a light of wavelength lambda naught due to electron transition from 2 to 1. Right. अब इस केस में it says if we take into account the recoil of the atom when photon is emitted. Now when there is no recoil, ideal case में जब कोई recoil नहीं होता है, तब तो अपन कंप्लीट एनर्जी जो है वो फोटोन के साथ ही एसोसिएट कर देते हैं, तो hc by lambda naught will be 10.2 when there is no recoil. बट अगर अब एटम रिकॉइल होगा तो ऐसे केस में सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी शेयर्ड बाय द एटम आल्सो। तो विदाउट रिकॉइल जो एनर्जी आएगा और विथ रिकॉइल जो एनर्जी आएगा उसमें अपन कंपैरिजन देखें, तो विथ रिकॉइल जो फोटोन के पास एनर्जी होगा hc बाय लैम्डा, दैट शुड बी लेस देन द एनर्जी जो आइडियली उसके पास होगा विदाउट रिकॉइल। तो इसको अपन कंपैरिजन करेंगे तो यहां से वी विल हैव लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, ये रिजल्ट आ रहा है, दिस लैम्डा इट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। तो इजी क्वेश्चन था, बस वो रिकॉइल एंड नॉट रिकॉइल वाला कंपैरिजन क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 meters हाई, then a whole of area given, right, the rate of leakage we can see unit यहां पे जो है that is meter cube per second, तो volumetric flow rate देखना है। तो we know that the volumetric flow rate d volume by dt it is a into v। जो एरिया है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻⁴, और v जो होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स दैट इज √2gh, राइट। तो अकॉर्डिंगली दिस इज 10 इंटू 10⁻⁴, √2gh में is 2, g is 10, height we are given 5, so accordingly this comes out as 10⁻⁻2 meter cube per second, so that is the volumetric flow rate जो आ रहा है which is given in option A। तो again a very very straightforward question based on the speed of efflux concept of fluid chapter। Then next पे चलते हैं। 14th is a very good question here।
A pendulum is oscillating with angular amplitude 90. The value of angle alpha made by the string with a vertical. Now the angle it is with a vertical at which the acceleration is directed horizontally. तो मान लीजिए अगर ये यहां से किसी अल्फा एंगल पे आया यहां, और ये एंगल जो है क्वेश्चन से इस वर्टिकल से है, ठीक है, दिस इज लेट्स से लेंथ एल, और इस जगह पे आके इट सेज द एक्सेलरेशन बिकम्स हॉरिजॉन्टल. एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब है द नेट फोर्स विल बिकम हॉरिजॉन्टल, और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब है द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस विल कैंसिल आउट. तो फोर्सेस अपन देखें तो टी लग रहा है, एक mg लग रहा है, और यहां से अपन एंगल स्टडी करेंगे तो ऑफ कोर्स दिस एंगल जो होगा दैट विल बी अल्फा. नाउ if we apply mechanical energy conservation from this point to this point, so we can say the loss of potential energy is mg into L cos alpha. वो L cos alpha से descend किया, and that will be equal to the gain in kinetic energy half mv square. तो यहां से v square की वैल्यू मुझे मिल गई 2gl cos alpha. that's one result. फिर हम जो पॉइंट है जहां पे अल्फा एंगल बन रहा है वहां सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखें. तो सेंट्रीपिटल का इक्वेशन विल बी t माइनस mg cos alpha, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l. ये v स्क्वायर यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से t का वैल्यू जो मिल रहा है, टेंशन का वैल्यू जो मिल रहा है, दिस इज 3gl cos alpha. राइट, इट इज 3mgl cos alpha, सॉरी. तो ये आपका आपने सिंस v का वैल्यू उधर प्लेस किया, तो v का वैल्यू प्लेस करने के बाद जो टेंशन का वैल्यू अकॉर्डिंगली मिलेगा, दैट टेंशन का वैल्यू इट विल बी 3mg cos alpha. ये l हट जाएगा यहां से, तो दिस कैलकुलेशन, दिस t विल बी 3mg cos alpha. राइट, ओके. नाउ अब सिंस इस जगह पे द फोर्स हैज टू बिकम हॉरिजॉन्टल, फोर्स हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ वर्टिकल कंपोनेंट शुड कैंसिल आउट, तो t cos alpha शुड गेट बैलेंस विद mg. अच्छा, अब इसमें मैं t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वी हैव 3mg cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू mg. इसमें से mg कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर अल्फा आपका 1/3 आ रहा है, तो cos अल्फा इज 1/√3. तो cos इनवर्स 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा जो हमने निकाला है. So, वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पे आपका नेट फोर्स बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कैंसिल होना है वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ. आपने सेंट्रीपिटल का इक्वेशन भी लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई किया. सो इट्स अ गुड लर्निंग क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. Now the next question says, in a common emitter NPN transistor, that much electrons enter the emitter and it is connected to the battery. 5% recombine with the holes. Current gain निकालना है. तो common emitter में जो current gain है बीटा, we know it is given by IC upon IB. अब 5% अगर होल्स से रिकम्बाइन किए तो 95% कलेक्टर पे पहुंचेंगे. तो कलेक्टर करंट जो होगा दैट विल बी 0.95 ऑफ द एमिटर करंट, और 5% होल से कंबाइन किए तो ऐसे केस में इट विल बी 5% ऑफ द एमिटर करंट. बेस करंट जो होगा वो 5% हो जाएगा. तो दिस 95 अपॉन 5 द वैल्यू इट इज 19. तो ये बीटा का वैल्यू स्ट्रेट अवे 19 आ रहा है. सो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. 1800 watt toaster, a 1.3 kilowatt electric fan, and 100 watt lamp are plugged in the same, right, all three devices they are in parallel, or right, parallel में दे रखा है, and approximate value of total current निकालना है through the circuit. Right, we know that जब parallel में हम connect करते हैं तो जो equivalent power होता है that is P1 plus P2 plus P3, ये powers add हो जाते हैं अगर parallel में है तो हमारा नेट पावर जो यूज हो रहा है, अच्छा, इक्विवेलेंट पावर को फाइनली मैं V इंटू आई लिख सकता हूं, जो बैटरी V लगाया है और जो टोटल करंट आई है उससे इक्वेट कर लिया. तो पावर वैल्यू इज 1800, 1.3 किलोवाट इज 1300 प्लस 120. सो दिस ओवरऑल वैल्यू, right, this overall value it comes out as this 1800 and this is 3100. So this comes out as 3220 and this will be equals to V into I. अब इसको अपन कैलकुलेट करें, it says approximate value निकालना है, तो this approximate value it comes out as 27, right? Approximately ये approximately आपका 27 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये वैल्यू आपका 27 आ रहा है. Right, so a very very easy question based on current electricity. Next पे चलते हैं. It says that V equals to A by T and all, और B का dimensional formula निकालना है. Alright, B का dimensional formula निकालना है, तो for dimensional correctness V का dimension जो है वो BT square से match करना चाहिए. That means B का dimension should be same as V upon T square.
अब v अपॉन टी स्क्वायर मतलब v का तो एल टी माइनस वन होता है, अब टी स्क्वायर और आ गया डिनोमिनेटर में, तो द डायमेंशन शुड बी एल टी माइनस थ्री, इट्स एम जीरो एल वन टी माइनस थ्री विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. सो अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायमेंशन एनालिसिस. नेक्स्ट पे चलते हैं. Says as shown in figure wheel A of radius 10 centimeter is coupled with B. अब ये couple करने वाले questions आपने definitely observe किए होंगे पहले भी. तो ऐसे केस में we know that since ये वाला point इसका इसके साथ जुड़ा हुआ है and the length of this belt remains constant, तो इनके linear velocities, इनके tangential accelerations ये match करेंगे. तो ये अपन लिख सकते हैं कि the tangential acceleration of that point on A will be same as the tangential acceleration of that point on C. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at क्या होता है? अल्फा आर. एक तो क्या होगा, इस पॉइंट का लीनियर स्पीड मैच करना चाहिए ताकि बेल्ट की लेंथ ना बदले, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मैच करेगा बिकॉज वो भी अलोंग द लेंथ है, अलोंग द टेंजेंट है. अब इसको अपन ने लिखा एज अल्फा ए आर ए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा सी आर सी. हमें यहां पे रेडियस दोनों के दे रखे हैं और ए का हमें अल्फा दे रखा है, तो सी का अल्फा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा एज 1.6 into radius of A is 10 centimeter upon the radius of C is 25 centimeter. कन्वर्जन की नीड नहीं है, यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से राइट उसके हिसाब से आपका अल्फा C जो आ रहा है दिस इज 0.64 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये अल्फा C आ गया. देन वी कैन अप्लाई सिंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वी कैन अप्लाई ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. राइट दिस वी आर अप्लाइंग फॉर व्हील C. तो यहां से टाइम की वैल्यू जो आएगी दैट इज दिस फाइनल ओमेगा. इनिशियल तो जीरो था, तो फाइनल ओमेगा जो है इट शुड रीच 100 आरपीएम. तो आरपीएम को अपन रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो ये 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई किया एंड दैट डिवाइडेड बाय दिस अल्फा जो कैलकुलेट हमने किया है. तो ये अब थोड़ा कैलकुलेटिव चलेगा बट अकॉर्डिंगली दैट आंसर इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली एज 16 सेकेंड्स. तो हमने जस्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के इक्वेट किए हैं. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वेट किया, वहां से अल्फा ए आर ए इक्वल्स टू अल्फा सी आर सी से अल्फा निकाल लिया. देन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी बिकॉज अल्फा कांस्टेंट था और वहां से टाइम की वैल्यू आ रही है. तो ठीक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन. राइट नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके बीट्स पर, सो बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है. अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, वन ट्रेन इज अप्रोचिंग, द अदर इज गोइंग अवे, द अदर इज रिसीडिंग. तो देखिए जब अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ओरिजिनल से ज्यादा सुनाई देगा. तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 240. जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है तो दिस इज साउंड का स्पीड, और सोर्स मूविंग है तो ग्रेटर बनना है तो 300 माइनस 4. एंड सेकेंड केस में जब रिसीड कर रहा है तो रिसीडिंग वाले केस में ये f नॉट टाइम्स, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ये रिसीडिंग है तो फ्रीक्वेंसी कम करना है तो 300 प्लस 4. Now accordingly हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी f1 माइनस f2. f1 माइनस f2 में अपन देखें तो ये 240 और 300 जो है वो तो कॉमन आ रहा है. ब्रैकेट में अपने पास है 1 अपॉन 296 माइनस 1 अपॉन 304, और इसको फर्दर अपन कैलकुलेट करें, अप्रोक्सीमेशंस देखें, इट इज 240 इंटू 300 इंटू 8 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 296 एंड 304. When approximated, इसको 300 और 300 मान के अपन कैंसिल कर दें तो दिस कम्स आउट एज अप्रोक्सीमेटली राइट 6 आ रहा है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 6 के इक्वल आ रही है अप्रोक्सीमेटली. तो बीट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगा दैट विल बी 6. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. It says a body starting from rest is moved along a straight line by a machine delivering constant power. तो पावर अगर कांस्टेंट है, वी नो दैट पावर जो होता है दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी. राइट, तो अकॉर्डिंगली वर्क डन जो आएगा दैट विल बी पी डी टी इंटीग्रेशन. पावर कांस्टेंट है तो वर्क डन आपका पी टी आ जाएगा. एंड सिंस रेस्ट से स्टार्ट किया है, वी नो दैट वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से इसको डेल्टा के लिख सकते हैं. तो के इनिशियल जीरो है तो के फाइनल आपका पी टी आ गया. नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी इट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी. कांस्टेंट टर्म्स हटाएं तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t
एंड डिस्टेंस कवर्ड जो होगा दैट विल बी v dt का इंटीग्रेशन, तो रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे, t टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे, तो t टू द पावर 3/2 का प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। अगेन अ रूटीन क्वेश्चन जो पहले भी AI में, जेई मेन में एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। Alright, moving to the next question. Now, this is a good question here, but still you have observed such questions before. कि ये एक infinite ladder जैसा हमें situation given है, and the resistance of each resistor is 100 here, and we need to find the resistance to be connected between C and D so that the equivalent A and B does not depend on the number of elementary cells. Okay, so if we assume that ये C और D के बीच में अगर मैं कोई रेजिस्टेंस लेट्स से x कनेक्ट कर देता हूं, है ना, C और D के बीच में x कनेक्ट करता हूं, एंड वी नो दैट जब इस पूरे नेटवर्क को हम वाइंड अप करते हुए जाएंगे तो पूरा वाइंड अप करते हुए नंबर ऑफ ये रेजिस्टर्स वगैरह पे डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स पे अगर डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे केस में राइट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ये तभी होगा जब x का इन सभी r के साथ जो कॉम्बिनेशन आए वो अल्टीमेटली वापस x ही आ जाए। इट मीन्स दैट कि जब हम इस पूरे सर्किट को समेटेंगे, इस पूरे सर्किट को जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल फोटो शुड लुक लाइक दिस वन, एंड दिस इज ए एंड बी। तो यहां पर ये ए आ गया, दिस इज बी, राइट। सिमेट्री को यूज करते हुए जब पूरा सर्किट सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे तो यहां पे ये x बचेगा, दिस विल बी r, दिस इज ऑल्सो r एंड दिस इज ऑल्सो r, तब जाके वो इंडिपेंडेंट हो रहा है सिमेट्री के अकॉर्डिंग। और ये सब मिला जुलाकर वापस से x ही आना चाहिए बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसे केस में सब मिलाकर वापस x आ रहा है। तो इफ वी सी दिस r, दिस x एंड दिस r, दे आर इन सीरीज, और फिर वो तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो r के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वी हैव r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, सो 2r प्लस x, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इज 2r प्लस x, वो उस r के साथ पैरेलल में है, तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 3r प्लस x, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट है ये x के बराबर ही आना चाहिए, सो अकॉर्डिंगली वी हैव 2r स्क्वायर प्लस rx and that will be equals to 3rx plus x square, right? So it's a quadratic equation, factorize नहीं होगा इतना easily। तो accordingly अपना equation जो बन रहा है it is this x square plus 2rx minus 2r square and that is equals to 0। इसमें अपन quadratic formula अप्लाई करें तो it is x equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac is 4r square plus 8r square upon 2a, राइट। इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है एंड वी आर लेफ्ट विथ माइनस r प्लस रूट 3r, सो दिस इज r टाइम्स रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 इज 0.73 और r 100 दे रखा है तो आपका x का वैल्यू 73 ओम आ रहा है। सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन हियर। बस ये कि इनफाइनाइट लैडर आप इस तरह के नेटवर्क सॉल्व कर चुके हैं पहले तो डेफिनेटली वो थॉट क्लिक हो जाएगा, बट अगेन अ गुड क्वेश्चन विद अ गुड कैलकुलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट सेज अ बॉडी ऑफ वेट 64 इज पुश्ड विथ जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस द फ्लोर, और सेम फोर्स लगाया। तो इट्स अ रूटीन लैंग्वेज जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एफएस मैक्स फोर्स हमने लगाया होगा इसको चलाने के लिए, एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग तो हम एफएस मैक्स के बराबर ही फोर्स लगाते रहे। तो एक्सेलरेशन वैल्यू जो आएगी दैट विल बी एफएस मैक्स जो फॉरवर्ड फोर्स हम लगा रहे हैं, माइनस सिंस इसका मोशन स्टार्ट हो गया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ के फोर्स लग रहा होगा एंड दैट अपॉन मास विल गिव यू एक्सेलरेशन। अच्छा, एफ एस मैक्स को हम लिख सकेंगे यहां म्यू एस एम जी, एफ के जो होगा दैट विल बी म्यू के एम जी एंड दैट अपॉन एम। तो अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन वैल्यू इज म्यू एस माइनस म्यू के टाइम्स जी। तो म्यू एस माइनस म्यू के इज 0.2 इंटू जी कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन पर बेस्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। राइट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस इन द सैंपल विल डिके आफ्टर 4 हाफ लाइव्स। तो आफ्टर 4 हाफ लाइव्स अपन देखें, ठीक है, आफ्टर 40 हाफ जो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 टू द पावर 4।
तो दैट 1/2 to the power 4 इज 1/16। तो प्रोबेबिलिटी 1/16 है, और यही प्रोबेबिलिटी आपका डीके का भी है, तो दिस विल बी इक्वेटेड विथ a/b। तो प्रोबेबिलिटी आपका a/b है, तो a प्लस b का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 17। नाउ दिस इज अ बिट डाउटफुल, जो 31 यहाँ पे गिवन है, आई डाउट कि ये 31 होगा। मेरे हिसाब से द आंसर, द प्रोबेबिलिटी इज 1/16, द आंसर शुड बी 17 इन दिस केस। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। It says mass m1 is connected to a horizontal spring, performs SHM with amplitude A, while mass m1 is passing through the mean position, और m2 उसके ऊपर ड्रॉप किया और नया एम्पलीट्यूड a1 हो गया, और उसके बारे में कुछ जजमेंट लेना है। तो देखिए, जब वो दूसरा जो पहला वाला पार्टिकल है, जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है और हम दूसरा पार्टिकल उस पर ड्रॉप कर रहे हैं, हम उसमें बिफोर ड्रॉपिंग एंड आफ्टर ड्रॉपिंग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ लगा रहे हैं। तो बिफोर द पार्टिकल वॉज ड्रॉप्ड, वो पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा था, दिस m1 वाज क्रॉसिंग इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे है, तो उसका स्पीड जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड इज ओमेगा ए। तो इनिशियल मोमेंटम में मास तो है 1, और वेलोसिटी की जगह v मैक्स आएगा, v मैक्स मतलब ओमेगा ए आएगा, तो दैट विल बी ओमेगा ए, बिकॉज दैट पार्टिकल वाज पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, जब m2 उस पर ड्रॉप किया, तो m2 और m1 मिलाकर भी वो मीन पोजीशन को ही क्रॉस कर रहे हैं। बट नाउ दिस टाइम सिंस ओमेगा आपका k बाय m अंडर रूट होता है, तो ओमेगा भी चेंज हो गया और एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो फाइनल मोमेंटम में मास जो होगा दैट विल बी 4, एंड नया ओमेगा और नया एम्पलीट्यूड यहां पे अपन लिख दिया, बिकॉज दे आर स्टिल पासिंग देयर मीन पोजीशन, तो स्पीड अभी भी मैक्सिमम होगा और ओमेगा a के बराबर होगा। नाउ ओमेगा जो अपन पहले का लिख सकते हैं दैट इज k बाय m अंडर रूट, पहले मास 1 था, तो पहले वाला ओमेगा दैट विल बी k बाय m अंडर रूट एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय a, दैट विल बी 4 टाइम्स जो नया ओमेगा होगा दैट विल बी k अपॉन टोटल मास नया इज 4, तो दिस k बाय 4 अंडर रूट एंड दैट इनटू a डैश। यहां से अपन कैलकुलेशन देखें तो ये अंडर रूट 4 जो है वो 2 हो गया, ये 2 का फैक्टर आ रहा है, तो a डैश बाय a इट कम्स आउट एज 1/2। अच्छा, इससे रिजेंबल कराने के लिए अपन 1/2 को लिख सकते हैं 1/4 का अंडर रूट, है ना। 1/4 का अंडर रूट मतलब 1/4 टू द पावर हाफ। तो यहां से p का वैल्यू 1 है और q का वैल्यू 4 है, तो आपका p प्लस q का वैल्यू सीधा 5 आ जाएगा। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, जो एसएचएम के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन हमें थ्योरी में बताया जाता है, उस प्रोफाइल पे बेस था जो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैनेज हो रहा है। Right, the last question. It says maximum refractive index of a prism which permits the passage of light through it is, right? Light के पास नहीं होने का कंडीशन होता है a greater than twice theta c। तो लाइट के पास हो जाने का कंडीशन होगा a should be less than twice of theta c। अब अगर यहां पे अपन देखें, it should be a/2 less than theta c। दोनों तरफ अगर मैं साइन लिख दूं तो इट विल बी साइन a/2 विल बी लेस देन साइन थीटा c, राइट। साइन a/2 में a की जगह हमें 90 दे रखा है, तो ये a/2 हो गया 45, साइन 45 इज √2, तो दिस √2 इज लेस देन साइन थीटा c। साइन थीटा c मतलब 1/n, तो दिस गिव्स यू n एज लेस देन √2। तो आपका n मैक्सिमम जो है ना, n मैक्सिमम जो है वो आपका √2 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे √n का वैल्यू पूछा है ना, तो अकॉर्डिंगली द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √2 आ रहा है, तो वो वैल्यू आपका 2 के इक्वल हो गया ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √n है, तो हमारे हिसाब से इज √2, तो वैल्यू 2 के बराबर है। तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, जहां पे ये बात क्लिक होनी चाहिए कि लाइट के पास होने की कंडीशन क्या होती है, और फिर दोनों तरफ अपने साइन थीटा लेके उसको सॉल्व किया। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, इट्स नॉर्मल जेई मेन पेपर, जिस तरह का पेपर जेई मेन से आप एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह का पेपर था। इट वाज अ स्कोरिंग एग्जाम, बिकॉज इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनका काउंट भी ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जो आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। Alright, so we'll meet again with the solution of next JEE main NTA paper. Till then, you keep working hard, you stay motivated, and you can and you will remember. Thank you.